آپ کو بتائیں کہ کراچی سمیت سندھ بھر کے سرکاری اسپتالوں میں مطالبات کی منظوری کے لیے ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال چوتھے روز میں داخل ہو گئی ہے۔ صوبے کے تمام اسپتالوں کی او پی ڈیز اور آپریشن تھیٹرز آج بھی بند ہیں، جس کے باعث مریض اور ان کے تیمارداروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ دادو، سکھر اور تھر پارکر میں اموات بھی ڈاکٹرز کو اپنے مطالبے سے پیچھے نہ ہٹا سکی۔ ینگ ڈاکٹرز کا مطالبہ ہے دوسرے صوبوں کے برابر تنخواہ اور مراعات ملنے تک احتجاج جاری رہے گا۔ اسی پر بات کریں گے، عاصم اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاصم، بتائیے گا، چوتھا روز ہے، ڈاکٹرز بھی اپنے ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیا انتظامیہ کی جانب سے بھی کوئی موقف نہیں آیا سامنے؟ بالکل، دیکھیں جی، صوبہ سندھ میں صحت کی صورتحال ویسے ہی جو ہے وہ ابتر ہے، لیکن گزشتہ 4 روز سے جو صورتحال سب کے سامنے ہے اس میں کہا جا سکتا ہے کہ جی مسیحا ہڑتال پر ہیں، مریض تڑپ رہے ہیں اور سندھ حکومت جو ہے وہ اس وقت بے حسی کا منہ بولتا ثبوت نظر آ رہی ہے۔ 4 روز ہو گئے ہیں لیکن سندھ حکومت اور ینگ ڈاکٹرز کے درمیان جو ڈیڈ لاک ہے اس میں جو ہے وہ ہلکا سا بھی کریک نہیں آ سکا ہے۔ سندھ حکومت جو ہے وہ اپنے رویے پہ ڈٹ چکی ہے، ڈاکٹرز جو ہے وہ ہڑتال، احتجاج اور نعرے بازی پہ ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن ان تمام صورتحال میں جو ہے وہ سندھ بھر کے سرکاری اسپتالوں میں آنے والے جو لاکھوں مریض ہیں وہ تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں۔ مریضوں کا یہی کہنا ہے کہ اس ہڑتال کو ختم ہونا چاہیے تاکہ جو ہے وہ او پی ڈیز اور آپریشن جو رکے ہوئے ہیں ان کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جب تک ہماری تنخواہیں پنجاب اور کے پی کے ڈاکٹرز کے برابر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جاتا ہے اس وقت تک جو ہے وہ نہ ہم کوئی مذاکرات کریں گے، نہ کسی پریس کانفرنس میں جو ہے وہ سندھ حکومت کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور نہ ہی جو ہے وہ اپنا احتجاج ختم کریں گے۔ تیسری جانب اگر آئیں تو سندھ حکومت کہتی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب فرماتے تھے کہ جی ہم یہ کر دیں گے، لیکن وزیر صحت اس کے اگلے دن یہ بیان جاری کر دیتی ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ڈاکٹروں کے مطالبات جو ہے وہ ناجائز ہیں، ہم اس کام کو جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ پیر سے جو احتجاجی ڈاکٹرز ہیں ان کا احتجاج نئے مرحلے میں جو ہے وہ داخل ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ پیر سے جو سندھ بھر میں جو پولیو مہم شروع ہو رہی ہے، ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کے بائیکاٹ پر بھی غور کر رہے ہیں۔ اگر یہ ہمارے مطالبات یعنی اتوار تک نوٹیفیکیشن نہیں جاری کیا جاتا ہے تو ہم اس کا بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ انہوں نے ایک اور اعلان کیا ہے کہ یہ ایمرجنسی اور وارڈز کے باہر جو ہے وہ ٹینٹ لگا کر او پی ڈیز کرنے کا سلسلہ شروع کر دیں گے۔ بہت شکریہ عاصم اشرف، ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ کراچی سمیت سندھ بھر کے سرکاری ہاسپٹلز میں مطالبات کی منظوری کے لیے ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال چوتھے روز میں داخل ہو چکی ہے۔ صوبے کے تمام ہاسپٹلز کی او پی ڈیز بند ہیں۔ سندھ کے بعد وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے سب سے بڑے ہسپتال پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں بھی ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف سراپا احتجاج ہے۔ پیمز کی او پی ڈی 2 گھنٹے کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ پیمز کو بورڈ آف گورنرز کے ماتحت کرنے کے حکومتی فیصلے کے خلاف ملازمین کا احتجاج جاری ہے۔ ملازمین نے کہا ہے کہ جب تک مطالبات نہیں مانے جاتے روزانہ کی بنیاد پر او پی ڈیز 2 گھنٹے بند رہے گی۔ عائشہ شعیب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ عائشہ، اور کیا کہہ رہے ہیں یہ ملازمین؟ جی بالکل، دیکھیے وفاقی کابینہ میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ پیمز اسپتال کو بورڈ آف گورنر کے ماتحت کیا جائے۔ اس حکومتی فیصلے کے بعد جتنے بھی پیمز امپلائی تھے وہ سراپا احتجاج ہیں اور گزشتہ روز بھی انہوں نے احتجاج کیا اور ہسپتال کو بند کر دیا، اور جتنی بھی ملکہ اس کے ساتھ اسپتال کے ساتھ سڑک تھی وہاں پر تمام ڈاکٹرز نکل اور انہوں نے اپنا احتجاج کیا۔ گزشتہ روز یہ بھی ڈاکٹروں کی جانب سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ جب تک ان کے مطالبات نہیں مانے جاتے وہ اسی طرح روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ 2 گھنٹے کے لیے او پی ڈی بند کریں گے۔ آج صبح سویرے ہی انہوں نے وفاقی دارالحکومت کا چونکہ سب سے بڑا اسپتال ہے پیمز، یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں روز مریض آتے ہیں اور یہاں پر آج بھی صبح انہوں نے او پی ڈی سروس کو بند کر دیا ہے اور لوگ یہاں پر کافی مشکلات کا شکار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ڈاکٹرز کی بات کی جائے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات نہیں مانے جاتے وہ یہاں پر اپنی جو احتجاج ہے وہ اس کو جاری رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ پیمز کی پرائیویٹائزیشن کسی بھی صورت منظور نہیں کرتے، اور جب تک یہاں پر کوئی حکومتی رہنما آگے ان سے بات نہیں کرتا روزانہ کی بنیاد پر او پی ڈی بھی بند رہے گی اور ان کا احتجاج بھی جاری رہے گا۔ احتجاج بھی جاری رہے گا۔ بہت شکریہ عائشہ شعیب۔ ادھر بجلی صارفین کے لیے بری خبر ہے۔ بجلی کے نرخوں میں 1 روپے 93 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست نیپرا میں دائر کی گئی ہے۔ سی پی پی اے نے جنوری کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں درخواست دی ہے۔ نیپرا درخواست پر 20 فروری کو سماعت کرے گا۔ فریقین دلائل سننے کے بعد بجلی کی قیمتوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ بجلی کے نرخوں میں 1 روپے 93 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست نیپرا میں دائر کی گئی ہے۔ مزید بات کریں گے اپنے نمائندے ریاض تھیم سے۔ ریاض، بتائیے گا اس بارے میں۔
جی سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نیپرا میں درخواست جمع کرائی ہے، جس میں جنوری کے لیے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمتوں میں ₹1.93 اضافے کی درخواست کی گئی ہے۔ اس میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اس لیے تجویز کیا گیا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو فرنس آئل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ورکنگ کر کے جو نیپرا اتھارٹی کو پیش کی جاتی ہے، جس کے بعد اتھارٹی جو ہے وہ صارفین کے نمائندوں اور چیمبرز کے نمائندوں اور سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کے موقف کو سن کر اس پر حتمی فیصلہ کرتا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں کتنا اضافہ کیا جائے۔ اس حوالے سے نیپرا جو ہے وہ 20 فروری کو درخواست کی سماعت کرے گا، جس میں یہ حتمی فیصلہ کیا جائے کہ بجلی کی قیمتوں میں کتنا اضافہ کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ ریاض، تھیم اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور اب بات کریں گے سعودی ولی عہد کے اہم دورے کی۔ سعودی ولی عہد کے اسلام آباد میں فقید المثال استقبال کے لیے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، تاہم دورے کی تاریخ ایک دن آگے کر دی گئی ہے۔ اب سعودی ولی عہد آج کے بجائے اتوار کو پاکستان کے 2 روزہ دورے پر آئیں گے۔ سعودی ولی عہد کی آمد پر اپوزیشن جماعتوں کے قائدین کو دعوت نہیں دی گئی۔ بڑا مہمان، بڑی تیاریاں، اسلام آباد سعودی ولی عہد کے استقبال کے لیے تیار، خیر مقدمی بینرز آویزاں، تاہم دورے میں 1 روز کی تاخیر۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سعودی ولی عہد اب 17 فروری کو 2 روزہ دورے پر پاکستان آئیں گے۔ شرائع دستور پر شہزادہ محمد سلیمان، شاہ سلمان بن عبدالعزیز، وزیر اعظم عمران خان اور صدر مملکت عارف علوی کی بڑی بڑی تصاویر سجا دی گئیں۔ جیسے ہی معزز مہمان کا طیارہ پاکستانی حدود میں داخل ہوگا، JF-17 تھنڈر حصار میں لے لیں گے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں گارڈ آف آنر دیا جائے گا، 21 توپوں کی سلامی بھی دی جائے گی۔ گارڈ آف آنر کے بعد محمد بن سلمان وزیر اعظم عمران خان سے 1 on 1 ملاقات کریں گے۔ وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان سعودی ولی عہد کے اعزاز میں زورانہ بھی دیں گے، جبکہ ایوان صدر میں عشائیہ دیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق عشائیے میں اپوزیشن جماعتوں کے قائدین کو تاحال دعوت نہیں دی گئی۔ دورے کے دوسرے دن سعودی مہمان چیئرمین سینٹ اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کریں گے۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی محمد بن سلمان کے اعزاز میں استقبالیہ دیں گے۔ ایوان صدر میں ہونے والی اس تقریب میں سعودی ولی عہد کو نشان پاکستان سے بھی نوازا جائے گا۔ سعودی ولی عہد شاہ محمد بن سلیمان کے دورے کے دوران $20 ارب کی سرمایہ کاری کے معاہدے متوقع ہیں، جبکہ سی پیک منصوبوں پر سعودی عرب شمولیت کا خواہش مند ہے۔ اسلام آباد میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی بے مثال استقبال کے لیے بھرپور تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ شاہراہیں خیر مقدمی بینر سے سجا دی گئی ہیں۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ سعودی ولی عہد ہفتے کے بجائے اتوار کو پاکستان پہنچیں گے۔ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے ہمارے نمائندے شہباز احمد۔ شہباز، بتائیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل ویس، 1 روز رہ گیا ہے شاہی مہمان کے پاکستان آنے میں، اور جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں۔ جو سعودی ولی عہد ہیں شاہ محمد بن سلمان، وہ جو ہے کل اپنے وفد کے ہمراہ جو ہے پاکستان پہنچیں گے۔ وزیراعظم ہاؤس کے تزئین اور رہائش کا کام جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے، اور جو ہوٹل اسلام آباد میں بک کروائے تھے وہاں پر سیکیورٹی کلیئرنس کا عمل بھی جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ 8 ہوٹل اسلام آباد میں بک کروائے گئے ہیں وفد کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ KP ہاؤس، پنجاب ہاؤس اور بھوربن میں ایک جو ہوٹل ہے وہاں پر جو ہے اس وفد کو جو ہے وہ ٹھہرایا جائے گا۔ اسلام آباد کی تمام شاہراہوں پر جو ہے خیر مقدمی بینرز آویزہ کر دیے گئے ہیں، اور نور خان ایئر بیس پر جب جو ہے سعودی ولی عہد اپنے خصوصی طیارے پر پاکستان پہنچیں گے تو وزیراعظم عمران خان اپنی کابینہ کے ہمراہ ان کا پراتفاق استقبال کریں گے، جہاں پر ان کو گارڈ آف آنر دیا جائے گا۔ وزیراعظم عمران خان اپنی گاڑی میں بٹھا کر ان کو جو ہے یہاں سے وزیراعظم ہاؤس میں لے کر آئیں گے، جہاں پر انہیں جو پاک فوج کا جو ہے دستہ جو ہے وہ سلامی دے گا، اور اس کے لیے جو ہے ان کا جو روٹ ہوگا نور خان ایئر بیس سے لے کر وزیراعظم ہاؤس تک، وہاں پر پاکستان اور سعودی عرب کے جھنڈے جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں۔ خیر مقدمی بینر جو ہیں وہ آویزہ کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ 2 روزہ دورہ ہے، اور 2 روز میں جو بڑی ایکٹیویٹیز ایک تو یہ ہوں گی کہ ایک جو بڑی تقریب ہے وہ وزیراعظم ہاؤس میں ہوگی، جس میں بڑی ڈگنیٹریز جو ہیں ان کو بلایا گیا ہے، پوری وفاقی کابینہ ہوگی، اور اس کے علاوہ جو ہے تینوں مسلح افواج کے سربراہ جو ہے انہیں مدعو کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ثقافتی شو جو ہے وہ ایوان صدر میں ہوگا اگلے دن۔ اس کے بعد جو ہے جو صدر
मुल्क आरिफ अलवी जो है वो उनके एजाज में जो है वो इशाइया भी देंगे और उसके अलावा उनका वहाँ पर पुरतपाक इस्तकबाल भी किया जाएगा। तो पाकिस्तान की जानिब से तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं और पाकिस्तान जो है शाही मेहमान की आमद का जो है वो मुंतज़िर है। पहले ही कहा जा रहा था कि 16-17 को आएंगे, लेकिन आज नहीं, ये कल आएंगे। उसके हवाले से अगर सिक्योरिटी की अगर हम बात की जाए तो सख्त सिक्योरिटी इंतजाम जो है वो किए गए हैं और 4 मुख्तलिफ जो है वो सिक्योरिटी हसार रखे गए हैं। पहला हसार जो है वो शाही मुहाफिज होंगे, फिर पाक फौज, उसके बाद रेंजर्स और उसके अलावा जो है पुलिस को रखा गया है। जबकि इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से भी जो है वो ये कहा गया है कि 17 और 18 दो रोज जो है ट्रैफिक की डाइवर्जन होगी ताकि शहरियों को किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो अब एक रोज रह गया है और कल जो है सऊदी वली अहद शाह मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पाकिस्तान पहुंचेंगे और अभी तक की जो इतलात आ रही हैं कि जो पाकिस्तान के साथ मुआहिदे होंगे उसमें 4 मुख्तलिफ सेक्टर्स में होंगे, ऑयल रिफाइनरी में होंगे, अल्टरनेट एनर्जी में होंगे, माइनिंग्स में होंगे और ये तकरीबन 15 से 20 अरब डॉलर कहा जा रहा है कि ये जो पाकिस्तान की मईशत को एक बड़ी ज़रूरत है, मुआहिदे होंगे। और इसके अलावा जो है दफ्तर खाता की जानिब से भी ये कह दिया गया है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है और 17 और 18 दो रोज जो है सऊदी वली अहद जो है वो पाकिस्तान में क्याम करेंगे। सऊदी वली अहद खुद जो है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रहेंगे, जबकि जो उनकी काबीना होगी उनके लिए इस्लामाबाद की 5 स्टार होटल्स और उसके अलावा 6 और दीगर जो इस्लामाबाद के होटल्स हैं वो बुक कर लिए गए हैं। और जो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो तकरीबन 300 के करीब जो है लग्जरी गाड़ियां जो है वो बुक करवाई गई हैं जो सऊदी वली अहद के साथ। कुछ वफ्द के कुछ लोग जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, कुछ आज पहुंचेंगे, कुछ उनके साथ पहुंचेंगे। और जैसे ही कल सऊदी वली अहद का त्यारा जो है वो पाकिस्तान की हदूद में इंटर होगा तो पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 त्यारे हैं वो उनको जो अपने हिसार में लेंगे और पुरतपाक तरीके से पाकिस्तान जो है वो सऊदी वली अहद की जो है आमद का मुंतज़िर है। उनका पुरतपाक इस्तकबाल एयरपोर्ट पर नूर खान एयरबेस पर किया जाएगा और उन्हें जो है वो पुरतपाक इस्तकबाल और जो है शाही वफ्द को जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद जो है गाड़ी ड्राइव करके वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद आपका। और अब बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की। काबिज भारत पुलवामा में खुदकुश हमले का बदला निहत्ते कश्मीरियों से लेने पर तुल गया। काबिज भारतीय फौज ने जिला पुलवामा और इस्लामाबाद के मुतादिद इलाकों का मुहासरा कर लिया। सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरियों को घरों से निकालकर तशद्दुद का निशाना बनाया, चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया। भारतीय फौज ने 13 कश्मीरियों को हिरासत में ले लिया। कठपुतली इंतजामिया ने पुलवामा और इस्लामाबाद में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी है। काबिज भारत पुलवामा में खुदकुश हमले का बदला निहत्ते कश्मीरियों से लेने पर तुल चुका है। वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि पुलवामा का वाक़या अफसोसनाक है, पाकिस्तान इसकी मजम्मत करता है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान को पुलवामा वाक़े से कोई फ़ायदा नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत इल्ज़ामात न लगाए, सबूत फराहम करे, हम ताउन करेंगे। वजीर खारजा ने पुलवामा वाक़या की मजम्मत कर दी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पुलवामा वाक़या अफसोसनाक है, पाकिस्तान इसकी मजम्मत करता है। उन्होंने कहा कि दुनिया हकायक से वाकिफ है, पाकिस्तान को पुलवामा वाक़या से कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तनहा करने का भारतीय एजेंडा खाक में मिल गया। शाह महमूद कुरैशी का कहना है पाकिस्तान जानी नुकसान और तशद्दुद के हक में कभी नहीं रहा। पाकिस्तान अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। भारत सबूत फराहम करे, हम ताउन करेंगे, लेकिन बेबुनियाद इल्जामात ना लगाए जाएं। वजीर खारजा का कहना था कि वो कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर पहले से ज्यादा पुरएतमाद लौट रहे हैं। पाकिस्तान का खित्ते में बढ़ता किरदार और आलमी बरादरी में बेहतर होती साख ने मोदी सरकार को आग लगा दी है। सऊदी वली अहद के अहम तरीन दौरे और कुलभूषण यादव के खिलाफ अहम समात से पहले भारत ने टेंशन वाला माहौल बनाने की साजिश रचाई। पाकिस्तान को सिफारती सतह पर बदनाम करने के लिए मन घड़त इल्जामात लगाए। पाकिस्तान की सिफारती महाजों पर अहम कामयाबियां भारत को हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों से भारत खाइफ, पुलवामा हमले का ढोंग रचाया और कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। सऊदी वली अहद का दौरा भारत को एक आंख नहीं भा रहा। मोदी सरकार की टेंशन का माहौल बनाकर मोहम्मद बिन सलमान के दौरे को सबूताज करने की कोशिशें। भारतीय वजीर अरुण जेटली ने तो हसद के मारे पाकिस्तान का मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। The most favored nation status which had been granted to Pakistan stands withdrawn.
हमले को भारत ने कुलभूषण केस की अहम समाअत से पहले झूठे प्रोपेगंडे का जवाब बना लिया। आलमी अदालत में केस की समाअत 18 फरवरी को हो रही है। पाकिस्तान पर हमले में मुलव्विस होने का नापाक इल्जाम लगाकर भारत आलमी अदालत में अपने जासूस को बचाने की राह हमवार करेगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान। उधर मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के काफिले पर कार सवार खुदकुश बमबार का हमला किया गया या बाकायदा मंसूबाबंदी के तहत करवाया गया। हमले से पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को दबाना तो मकसद नहीं था। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर भारतीय फौज के काफिले पर हमले ने कई सवालात छोड़ दिए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज पर हमला, मशकूक वाक़े ने कई सवालात को जन्म दे दिया। 150 किलोमीटर वादी के अंदर और 2500 फौजियों के दरमियान गाड़ी कैसे पहुंची? 7 कश्मीरियों के लिए एक भारतीय फौजी की तैनाती जैसी कड़ी सिक्योरिटी में गाड़ी को कैसे तैयार किया गया? एक खुदकुश बमबार कैसे अकेला बगैर चेकिंग गाड़ी ला सकता है? जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा तो कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ रही हैं। कश्मीरी बच्चा उन्हें जानता है, वो हमला क्यों करेंगे? जैश ए मोहम्मद ने जिम्मेदारी कबूल करने से भी इनकार कर दिया है। किसी कश्मीरी रहनुमा और अवाम ने तो वाक़े पर कोई रद्द अमल क्यों नहीं दिया? वाक़े पर तनकीद सिर्फ कश्मीर के अलावा भारतीय हुक्मरान क्यों दे रहे हैं? क्या भारत करतारपुर बॉर्डर खोलने पर पाकिस्तान की अमन की कोशिश को नाकाम बनाना चाहता है? सबसे बढ़कर ये कि वाक़े के वक्त को देखा जाए तो इससे फायदा किसको होगा, पाकिस्तान को या भारत को? नामवर बॉलीवुड शायर और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर और उनकी अहलिया शबाना आज़मी भारतीय इंतहा पसंदों से डर गए। पुलवामा हमले के बाद हिंदू इंतहा पसंदों के खौफ से दौरा कराची मनसूख कर दिया। जावेद अख्तर और अदाकारा शबाना आज़मी ने 23 और 24 फरवरी को कराची आर्ट्स काउंसिल में अपने वालिद कैफी आज़मी के एजाज में दी जाने वाली तकरीब में शिरकत करना थी। दोनों ने तकरीब में शिरकत की तस्दीक भी कर दी थी। दौरा मनसूख करने की इत्तला जावेद अख्तर ने एक ट्वीट के जरिए दी। जावेद अख्तर ने लिखा है, कराची आर्ट्स काउंसिल ने मुझे और शबाना को कैफी आज़मी के एजाज में मुनक़िद की जाने वाली 2 रोज़ा तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी मदऊ किया था, ताहम अब हमने अपना दौरा मनसूख कर दिया है। पैरागॉन सिटी केस में गिरफ्तार ख्वाजा बरादरान को लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। ख्वाजा बरादरान को कैंप जेल लाहौर से 15 रोज़ा जुडिशल रिमांड के बाद एहतसाब अदालत की रूबरू पेश किया जाएगा। एहतसाब अदालत को जाने वाले रास्तों को कंटेनर्स और खारदार तारे लगाकर बंद किया गया है। पुलिस की भारी नफरी एहतसाब अदालत के बाहर तैनात है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे सुहेल बलोच से। सुहेल, बताइएगा क्या इंतजाम देख रहे हैं आप वहाँ पर? जी बिल्कुल, सबसे पहले अगर बताएं कि ख्वाजा बरादरान को एहतसाब अदालत में नैब के जो जेल कैंप है वहाँ से जो है वो एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। मेरे ख्याल में देखा जा सकता है कि उनको बख्तरबंद गाड़ी में जो है वो एहतसाब अदालत के रूबरू लाहौर की जो है वहाँ पेश कर दिया गया है। उनको जुडिशल किया गया था 15 रोज़ तक और 15 रोज़ जुडिशल रिमांड ख़त्म होने के बाद अब उनको जो है वो एहतसाब अदालत में पेश किया गया। इस हवाले से कड़े इंतजाम सिक्योरिटी के किए गए थे और इस वक्त एहतसाब अदालत के बाहर जो है वो कंटेनर लगाकर सेक्रेटरीट चौक और एमबीओ चौक कॉलेज जो है वहां पर कंटेनर लगाकर रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया, रास्ते सील कर दिए गए थे। ताम पुलिस की भी भारी नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है और ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक को जो है वो जेल कैंप से जो है वो एहतसाब अदालत लाहौर की जो है वहां पर पेश कर दिया गया और कुछ ही देर के बाद एहतसाब अदालत के जो जज हैं सैयद नजमुल हसन बुखारी, उनकी एहतसाब अदालत में जो है वो बाकायदा तौर पर समाअत शुरू हो जाएगी। इस हवाले से ख्वाजा बरादरान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी में माली फ़वाइद हासिल किए थे, जिस पर उनको नैब ने गिरफ्तार किया। 53 दिन के बाद जब उनका जुडिशल हुआ और उसके बाद फिर से अब 15 रोज़ा जुडिशल रिमांड ख़त्म होने के बाद दोबारा से उन्हें सख्त सिक्योरिटी हिसार में लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। और इसके पहले अगर बाहर के मनाजर की बात करें तो बाहर भी पुलिस की जानिब से जो है वो बड़े बड़े कंटेनर लगाकर मुख्तलिफ रास्तों को सील किया गया था और इसके साथ साथ पुलिस के जो ताज़ा दम दस्ते हैं वो मुख्तलिफ पॉइंट पर बड़े बड़े बैरियर लगाकर वहां पर तैनात किए गए थे। इस वक्त मैं मरकजी गेट जो है लाहौर एहतसाब अदालत का है वहां पर मौजूद हूँ। मेरे अकब में भी जो है पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है जो कि किसी भी गैर मुतलका अफराद को दाखिले की इजाजत नहीं होगी और इस हवाले से खास तौर पर कंटेनर भी बाहर जो है बड़े बड़े चौक में लगाकर। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल बलोच आपका।
साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ रिहाई के बाद इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ आज अपनी वालिदा से जाती उम्रा में मुलाकात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर आज पार्टी ओहदेदारों से भी मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ दाता दरबार में दूध और मिठाई भी तकसीम करेंगे। शहबाज शरीफ की बड़े भाई नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जिना हॉस्पिटल आमद भी मुतवक्के है। अहम खबर है, साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के हवाले से बता रहे हैं, जो कि इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल किया गया। शहबाज शरीफ आज अपनी वालिदा से जाती उम्रा में मुलाकात करेंगे। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के सदर आज पार्टी ओहदेदारान से भी मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ दाता दरबार में दूध और मिठाई भी तकसीम करेंगे। शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जिना हॉस्पिटल भी आमद मुतवक्के है। अहम खबर है, शहबाज शरीफ रिहाई के बाद इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की जानिब से इस्तकबाल किया गया। नवाज शरीफ का जिना अस्पताल लाहौर में दूसरा रोज़ है। डॉक्टर्स की जानिब से आज उनके इब्तदाई टेस्ट किए जाने का इम्कान है। मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ का ECG, शुगर और ब्लड प्रेशर चेक किया और एकोकार्डियोग्राफी करने का फैसला किया। नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान भी जिना अस्पताल पहुँच गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहसिन अलवी से। मोहसिन, बताइएगा इस वक्त नवाज शरीफ की तबीयत कैसी है वहाँ पर? जी, साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ इस वक्त जिना अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। कल उनको यहाँ पर लाया गया था। इस वक्त आज सुबह जो है उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए हैं, जिनके उनकी ब्लड प्रेशर जो है वो चेक किया गया है, शुगर चेक की गई है। और 11 बजे के बाद जब कार्डियोग्राफी के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो आएंगे तो उनकी एकोकार्डियोग्राफी किए जाने का इम्कान है, जिसके बाद उनके गुर्दे के हवाले से कुछ टेस्ट किए जाएंगे। और उन टेस्ट की रिपोर्ट्स आने के बाद आज जो है साबिक वज़ीर आज़म के इलाज मुआलजे के हवाले से उनका मेडिकल बोर्ड जो है हतमी फैसला करेगा कि साबिक वज़ीर आज़म के मज़ीद इलाज को किस तरह से जारी रखा जाए। आज सुबह जो है उनका शुगर जो है वो उनकी चेक की गई है। इसके अलावा उनका ब्लड प्रेशर चेक किया गया है। मेडिकल बोर्ड जो साबिक वज़ीर आज़म के इलाज के मुआलजे के लिए तश्कील दिया गया है, उसके सरबरा प्रिंसिपल इल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर आरिफ तजम्मल का ये कहना है कि जब टेस्टों की रिपोर्ट्स आएंगी तो उसके बाद मेडिकल बोर्ड के अरकान आपस में मशवरा करेंगे और उसके बाद हतमी फैसला किया जाएगा साबिक वज़ीर आज़म के मज़ीद इलाज मुआलजे के हवाले से। कल जब साबिक वज़ीर आज़म को यहाँ पर लाया गया था तो उनका तफसीली तिबी मुआयना मेडिकल बोर्ड की जानिब से किया गया था, जिसके बाद ये तजवीज़ किया गया था कि कल यानी आज जो है एकोकार्डियोग्राफी जो है साबिक वज़ीर आज़म की जाए। और आज उस कार्डियोग्राफी का टेस्ट जो है होने के बाद और मज़ीद जो गुर्दों के टेस्ट किए जाएंगे तो उनकी रिपोर्ट्स आने के बाद उसकी रोशनी में साबिक वज़ीर आज़म के मज़ीद इलाज मुआलजे के हवाले से मेडिकल बोर्ड अपनी हतमी सिफारिशात जो है वो मुरतब करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन अलवी आपका। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले न्यूज़ अपडेट्स। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए तावन किया है और फूड पैंडा, हल्का नहीं आता। ख्वाजा बरादरान का 15 रोज़ा जुडिशल रिमांड खत्म। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक को आज एहतसाब अदालत लाहौर पेश किया जाएगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज है, जबकि बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात ने कल से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान जाहिर किया है। मालाकंड, हजारा डिवीजन, कोयटा डिवीजन में कहीं कहीं, जबकि कलात, योब, रावलपिंडी डिवीजन, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, बालाई पहाड़ी इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध की लपेट है। धुंध से कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। लाहौर से शेखपुरा तक मोटरवे धुंध की वजह से बंद रही। महकमा मौसमियात ने कल से मुल्क में बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई कर दी। मालाकंड, हजारा, कोयटा डिवीजन में कहीं कहीं, जबकि कलात, योब, रावलपिंडी डिवीजन, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। सर्द तरीन
ترین مقامات کے درجہ حرارت میں بگروٹ، کلات، زیارت -6، کالام -5، مالم جبہ -4، کوئٹہ، اسکردو، ہنزا میں -2 اور مری میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بلوچستان کے بالائی علاقوں میں ایران سے بارشوں کا سسٹم آج رات داخل ہوگا۔ نئے سسٹم کے داخل ہونے سے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ مزید بات کریں گے اپنے نمائندے آصف بلوچ سے۔ آصف بتائیے گا۔ آج بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ کوئٹہ اور گردنوا میں ہونے والی بارشوں اور پہاڑوں پر برف باری کے بعد تاحال سردی کی شدت برقرار ہے۔ آج بارش کا کسی قسم کا صوبے کے مختلف علاقوں میں امکان نہیں ہے، تاہم محکمہ موسمیات نے کل سے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارشوں اور برفباری کی نوید سنائی ہے۔ آج رات جو ہے بلوچستان میں ایران سے ایک اور سسٹم جو ہے بلوچستان میں داخل ہوگا، جس کے بعد مختلف علاقوں میں بارش اور بالا علاقوں میں برف باری کا بھی امکان ہے۔ کوئٹہ شہر میں اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے، اس وقت درجہ حرارت -2 ڈگری سینٹی گریڈ، کلات زیارت میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت گر گیا ہے۔ تاہم کل سے کوئٹہ سمیت بالائی علاقوں میں جو سردی کی شدت ہے اس میں کمی کا امکان ہے۔ موسم اسی طرح جو ہے سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ کوئٹہ میں دھوپ نکلی ہے، آسمان پر ہلکے ہلکے بادل ہیں اور 8 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 30% ہے۔ جی 2 دن سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری کے بعد چھتر پلین میں دھوپ نکل آئی ہے۔ پہاڑوں پر برف باری کے بعد سرد اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ موسم کو انجوائے کرنے اور برف سے لطف اندوز ہونے کے لیے لوگ دور دور سے چھتر پلین کا رخ کر رہے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے ریاست علی جہانگیری سے۔ ریاست علی بتائیے گا۔ جی اس وقت چھتر پلین اور اس کے مضافات میں موسم صاف ہو چکا ہے۔ 2 دن مسلسل بارش اور پہاڑوں پر برف باری کے بعد آج دھوپ نکل آئی ہے۔ چھتر پلین کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ پہاڑوں پر برف باری سے ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی نے سفید چادر اوڑھ لی ہو۔ چھتر پلین میں اس وقت انتہائی خوبصورت فضا ہے اور دھوپ کی وجہ سے علاقے کی خوبصورتی نکل آئی ہے اور برف کی وجہ سے پہاڑوں کی خوبصورتی نکل آئی ہے۔ مین شاہراہ ریشم پر واقع چھتر پلین میں سیاح کو پہنچنے کے لیے آسانی بھی ہوگی اور یہاں پر آنے والے لوگوں کو دلکش نظارے بھی ملیں گے۔ جس سیاح دور دور سے آتے ہیں اور چھتر پلین کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور چھتر پلین اس وقت ایک دلکش نظارہ پیش کر رہا ہے۔ کیمرامین ساجد حسین شاہ کے ساتھ ریاست خان جہانگیری، چھتر پلین نمائندہ۔ میکسیکو کی سرحد پر دیوار کی تعمیر کا معاملہ، ٹرمپ نے ملک میں ایمرجنسی لگا دی ہے۔ امریکی صدر کہتے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ اپوزیشن ایمرجنسی کو چیلنج کر دے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کورٹ بھی اس کے خلاف فیصلہ دے، لیکن صورتحال ایسی ہے کہ ان کے پاس اختیارات کو استعمال کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ جنوب میں سرحد پار سے منشیات، جرائم پیشہ افراد اور غیر قانونی تارکین وطن آ رہے ہیں۔ جلد ہی ملک کو محفوظ بنانے کے لیے اعلامیے پر دستخط کریں گے۔ کیلیفورنیا کے گورنر نے ایمرجنسی کے نفاذ پر امریکی صدر کے خلاف مقدمہ درج کروانے کا اعلان کر دیا ہے۔ Emergency relief. That is a real crisis. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے $5.7 ارب کا تقاضا کیا تھا۔ اور اب ایک نظر دنیا بھر سے چند اہم خبروں پر۔ امریکی تجارتی وفد کی چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں دونوں ممالک نے تنازعات کو بات چیت سے حل کرنے پر زور دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے نیوکلیئر ڈیل پر اثر نو بات چیت خارج از امکان قرار دے دی۔ جواد ظریف نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ امریکہ کے لیے خودکشی ہوگی۔ جنرل جوزف ہوٹل نے کہا ہے کہ شام میں موجود داعش کے جنگجو بدستور متحرک ہیں۔ امریکہ کی زیر کمان اتحادی فوج درپیش خطرے سے تنہا نمٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ سابق امریکی ایئر فورس اہلکار پر امریکی خفیہ معلومات تہران کو مہیا کرنے پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ امریکی فورس اہلکار پر 8 امریکی ایجنٹس کا نام ظاہر کرنے کا الزام ہے۔
अमरीकी रियासत शिकागो के एक कारखाने में मुसल्लह मुलजिम की फायरिंग से 5 अफराद हलाक जबकि 6 जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुसल्लह हमला आवर भी मारा गया। जख्मियों में पुलिस एहलकार भी शामिल है। बच्चे अब पढ़ेंगे दिलचस्पी के साथ। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों में लाई गई ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे तलबा भी हैं खुश और सीखना हो गया उनके लिए और भी आसान। तालीमी निज़ाम की इस शिद्दत के बारे में बताएंगी आयशा शुएब। ब्लैक बोर्ड के बाद अब व्हाइट बोर्ड की भी हो गई छुट्टी। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों में इंटरएक्टिव लर्निंग सोल्यूशन ने ले ली जगह। इंटरएक्टिव व्हाइट बोर्ड जिसमें लिखना, सीखना और पढ़ना सब कुछ मिल रहा है एक साथ। इस इंटरएक्टिव बोर्ड से हर बच्चा भी रहेगा खूब एक्टिव। प्रोजेक्ट के चेयरमैन कहते हैं कि इस्लामाबाद के दही इलाकों समेत 8 स्कूलों में इंटरएक्टिव लर्निंग सोल्यूशन को लगाया जा चुका है। 8 स्कूलों में हमने अपना इंटरएक्टिव लर्निंग सोल्यूशन डिप्लॉय किया है और मुझे जो खबर मिलती है कि माशाल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छा है। इस जदीद निज़ाम तालीम से इस्लामाबाद के स्कूलों में ज़ेरे तालीम तुलबा भी हैं खुश। मैं जब बुक्स पढ़ता था तो मुझे दिल नहीं करता था, कुछ कुछ भूल जाता था। अब जब से ये लगा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने का। जो भी टीचर समझाती है वो हमें समझ में आ जाती है, जो भी टीचर काम करवाती है और वो हमें समझ में आ जाता है। जदीद दौर के इस बोर्ड से जैसे ही हुए हैं नन्हे तुलबा रोशनास, पैदा हुआ है इनमें पढ़ाई का शौक। अब किताबों में खोने का जमाना हुआ पुराना। इस इंटरएक्टिव लर्निंग सोल्यूशन ने तुलबा के पढ़ने और सीखने के अमल को और भी आसान बना दिया है। कैमरामैन साजिद महमूद के साथ आयशा शुएब, न्यूज़ इस्लामाबाद। लाहौर की एहतसाब अदालत ने ख्वाजा बरादरान के जुडिशल रिमांड में 4 मार्च तक की तौसी कर दी है। पैरागॉन सिटी करप्शन स्कैंडल केस में ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफी को एहतसाब अदालत में पेश किया गया। इस हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा अदालती कार्रवाई के बारे में। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ख्वाजा बरादरान के 4 मार्च तक जुडिशल रिमांड में तोसी कर दी है। ख्वाजा बरादरान को 15 रोज़ा जुडिशल रिमांड के बाद एहतसाब अदालत के जज सईद नजीम हसन के रूबरू पेश किया गया था, जबकि नैब के प्रोसिक्यूटर वारिस अली जंडवा की जानिब से उनकी तफ्तीशी रिपोर्ट पेश की गई और अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया कि इनके मुतल्लिक रेफरेंस कब दायर किया जाएगा। तफ्तीशी अफसर की जानिब से कहा गया कि रेफरेंस जल्द ही दायर कर दिया जाएगा, जबकि अदालत ने कहा कि जल्द अज जल्द रेफरेंस दायर किया जाए। और दूसरी जानब कैंप जेल इंतजामिया के हवाले से उनकी हेल्थ की रिपोर्ट भी पेश की गई और ये है कि उन्होंने उनको 4 मार्च तक जुडिशल रिमांड पर दोबारा कैंप जेल भिजवा दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया, ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे। कराची के मारूफ आई चंद्रीगढ़ रोड पर निजी बैंक में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। अहम खबर है कराची से, जहां पर आई चंद्रीगढ़ रोड पर निजी बैंक में आग लग गई है। आग लगने के मनाजिर आप देख सकते हैं न्यूज़ की स्क्रीन पर, जबकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं, मसरूफ अमल है और आग बुझाने के सिलसिले को शुरू कर दिया है। कराची की मारूफ आई चंद्रीगढ़ रोड पर निजी बैंक में आग लग गई है। इसी पर बात करेंगे, मोहम्मद हमाद हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद, बताइएगा क्या वजूहात है आग लगने की और कौन कौन सी टीमें मसरूफ अमल हैं? देखिए, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां जो है मौके पर पहुंच चुकी हैं, जो कि आग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, जबकि बैंक के अमला जो है यहाँ पर मौजूद नहीं था क्योंकि आज जो हफ्ते का रोज है छुट्टी थी। लेकिन यहाँ पर मौजूद जो चौकीदार है उसका कहना है कि शॉर्ट सर्किट के बाद जो है ये आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां जो हैं और फायर फाइटर का जो अमला इस आग को जो है बुझाने की कोशिश कर रहा है। आई चंडीगढ़ रोड से जो है नेटी जेटी जाने वाला जो रोड है उसको मुकम्मल तौर पे जो है ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और जो है एक स्नार्कल को भी बुलाया गया है ताकि जल्द से जल्द जो है इस आग पर काबू पाया जा सके। इसके अलावा जो है बैंक में जो दीगर दफातर थे उनको भी जो है खाली करा लिया गया है और जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि जो है इस आग पर काबू पाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद हमाद। पेशावर प्रेस क्लब में 2 रोज़ा तस्वीरी नुमाइश इख्तिताम पजीर हो गई। मेहमान खुसूसी साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इकबाल जफर झगड़ा ने फोटो जर्नलिस्ट में इनामात भी तकसीम किए। अब्दुल कय्यूम आफरीदी की रिपोर्ट। पेशावर प्रेस क्लब में तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह। मेहमान खुसूसी NP के रुकन सूबाई असम्बली हारून समर बिलोर ने तस्वीरी नुमाइश को खूब सराहा। अपने जर्नलिस्ट भाइयों के अंदर छुपा हुआ एक आर्टिस्ट मैंने फील किया है, क्योंकि बहुत आर्टिस्टिक किस्म की तस्वीरें थी जो कि नॉर्मल अखबारों में जो हम पिक्चर्स देखे हैं वैसे हम ये उनसे काफ़ी मुख्तलिफ तस्वीरें थी।
पेशावर के फोटो जर्नलिस्ट की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा की सकाफत, सियाहत समेत दीगर मौज़ूआत पर खींची गई तस्वीरें तवज्जो का मरकज़ बनी रही। इंतहाई खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पर एग्जीबिशन में रखी गई हैं। इसमें वो तस्वीरें भी हैं जिसमें पेशावर की कल्चर आपको नुमाया नज़र आएगी। तस्वीरी नुमाइश 2 दिन तक जारी रहेगी, जबकि बेहतरीन तस्वीर खींचने वाले सहाफ़ी को इनामात भी दिए जाएंगे। कैमरामैन जमील अख्तर के साथ अब्दुल कयूम आफरीदी, नियो न्यूज़, पेशावर। पसरूर के तारीखी कस्बे चविंडा में 1965 की जंग के शहदा की याद में बनाई गई पब्लिक लाइब्रेरी अपनी नौयत का मुनफरिद मंसूबा है। अपनी मदद आप के तहत बनाए गए इस कुतुब खाने में 5000 किताबों का जखीरा है। हसन अली की रिपोर्ट। पसरूर के नवाही इलाके चोंडा की पब्लिक लाइब्रेरी 1965 की जंग के शोधा को मुनफरिद खराज तहसीन। 5000 किताबों पर मुश्तमिल इस पब्लिक लाइब्रेरी में मौरका 1965 की यादों के साथ जिंदगी के मुख्तलिफ मौज़ूआत का नायाब जखीरा है। लाइब्रेरी 1993 में अहलियान चविंडा ने शहादाए चविंडा को खराज अकीदत पेश करने के लिए कायम की, और इसका बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि जंग के बारे में जो पूरे मुल्क से सयाह यहाँ आते हैं जंग के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए, उनको यहाँ से हम मालूमात फराहम करते हैं, उनको बताते हैं। 1993 में चोंडा के बासियों ने अपनी मदद आप के तहत वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने वालों के साथ उनसियत के इजहार के लिए कुतुब खाना तामीर किया। 1965 की जंग से मुतालिक नक्शाजात सयाहों के लिए दिलचस्पी का बाइस है। आज हम चाहते हैं कि चविंडा की ये पब्लिक लाइब्रेरी जो है उसको हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो ताकि इसकी तोसी की जा सके। सरसत व शादाब लॉन और इल्म फन का खजाना रखने वाली चोंडा पब्लिक लाइब्रेरी तोसी और निगहदाश्त के लिए अरबाब इख्तियार की सरपरस्ती की मुंतज़िर है। हसन अली, नियो न्यूज़, पसरूर। पाकिस्तान में जो भी मादनियात पाई जाती है उनमें ज़्यादातर बलोचिस्तान में है। इन मादनियात से मुतालिक मुकम्मल मालूमात की फराहमी के लिए एक मरकज़ कायम किया गया है। जियो डाटा सेंटर के नाम से इस मरकज़ का इफ्तिताह वज़ीर आला बलोचिस्तान ने किया। कोयटा से आसिम उल्फत की रिपोर्ट। बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा मादनियात चागी में पाई जाती है। इसके बायस इसे मादनियात का शोकेस कहा जाता है। चागी समेत बलूचिस्तान में पाई जाने वाले मादनियात से मुतल्लिक मालूमात की फराहमी का मरकज कायम। जियो डेटा के नाम से इस मरकज का इफ्तिताह वज़ीर आला जाम कमाल ने किया। इस मौके पर ब्रीफिंग में बताया गया कि डेटा सेंटर मुल्की और बैन अवी सरमाकारों के लिए माइनिंग के शोबे में सरमाकारी के इम्कानात और माइनिंग एरिया की अलाटमेंट समेत दीगर मुतलका उमूर के बारे में रहनुमाई फराम करेगा। आजम उल्फत, नियो, कोयटा। कबूतर पालना भी एक फन होता है। इस फन के बाइस कबूतर अपने मालिक के हर इशारे को समझता है। वो ना सिर्फ अपने मालिक के इशारे पर उड़ते हैं बल्कि दूसरे कबूतरों को फंसा कर भी लाते हैं। आज़म उल्फत की रिपोर्ट। कबूतर का मालिक को प्यार का जवाब प्यार से। मौद अकबर जहां अपने कबूतरों से प्यार करते हैं वहां इनके खुराक में खुश्क फ्रूट भी इस्तेमाल करता है। काजू, बादाम, अखरोट, पुराटे, याद का घी, ये सारे इनको हम लोग देते हैं। खुराक के साथ इनके पैरों को सजाने का भी खास इंतजाम। कबूतर एक बेहतर रोबोट की तरह अपने मालिक के इशारों को खूब समझते हैं। उड़ने के बाद उतरने का इशारा, शिकार एक दूसरे के साथ हम लोग लड़ाते हैं, फिर वो कबूतर हम लोगों का कबूतरों में फंस जाता है, फिर उनको रगड़ा दे के फिर बिठाते हैं बाजुरा पेंका या जवारी पेंका ऊपर, बस वो खाने शुरू करता है। इस जाल से हम लोग इनको मारते हैं। कबूतर पालने वाले दूसरों के कबूतरों को पंसाते हैं, जबकि मौद अकबर दूसरे के कबूतरों का शिकार करने का इरादा करते हैं तो इसके लिए इस ट्यूब को उछालते हैं। उनको सीटी देता है, फिर जाल के साथ, अगर नहीं गया जाल के साथ फिर ये जो ट्यूब है ना ये हम लोग फेंकता है। फिर कबूतर समझता है कि भाई हम लोग को लड़ाने के लिए भेज रहे, उधर जाता है, लड़ाई करता है। मौद अकबर को कबूतर पालने का शौक बचपन से था। वो कहते हैं कि अगर ये शौक हो जाए तो इससे नशे की तरह जान छुड़ाना मुश्किल होता है। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ आजम उल्फत, नियो, कोयटा। इसके साथ ही 10 बजे के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नियो।